Hello friends, I am Ubaidullah Kansari and welcome to my channel. Hi, it's me. So in today's video we are going to discuss about some basic concepts of radiation. So in today's video we will discuss about radiation heat transfer, definition and basic terminologies related to radiation heat transfer like absorptivity, reflectivity, transmissivity and irradiation, and what is emissive power, what is emissivity. Then we will see the type of bodies, that is black, gray and opaque bodies. Then we will see the fundamental law of radiation, that is Stephen Boltzmann law, and at last we will see the radiation heat exchange between two black bodies. So the first topic is radiation heat transfer. So this is the lecture number 4 of this video lecture series. So in lecture number 2 we have discussed about the basic modes of heat transfer. In that we have studied conduction, convection and radiation. So I hope you have already watched that video. If you have not watched it yet, the link is in the description. So in that video we have already discussed few things about the radiation. So basically radiation is the transfer of heat in the form of electromagnetic waves which can travel even in vacuum. Okay. So ये रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसको ट्रांसफर होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. Between earth and sun there is no medium above the atmosphere. There is an empty space, that is vacuum. So radiation and heat transfer can take place even in vacuum. That means it can transfer without medium and with medium also. But this is not the case with the conduction and convection. Conduction और convection में आपको medium लगता है heat को transfer होने के लिए, but radiation के लिए medium है तो भी transfer होगा, medium नहीं है, that is absence of air is called as vacuum, or any medium is vacuum. So आपके पास कोई मीडियम नहीं है तब भी रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा. एंड द बिहेवियर ऑफ द रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज सेम एज दैट ऑफ लाइट एंड रेडियो वेव्स. तो बेसिकली जिस तरीके से लाइट बिहेव करती है एग्जैक्टली सिमिलर रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर होता है. और हमने सेकेंड लेक्चर में कुछ पॉइंट्स और डिस्कस किए थे, जैसे कि एवरी बॉडी कंटिन्यूसली एमिट्स और रेडिएट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, and the condition for radiating heat is the body should be at non-zero absolute temperature. So every body which is having non-zero absolute temperature must emit certain amount of heat. So the radiation heat transfer basically can take place from colder body to hotter body also, and also from hotter body to the colder body. ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखे थे. और एक बड़ा बल्ब है और एक छोटा बल्ब है. बड़े बल्ब की लाइट छोटे बल्ब को भी मिलेगी और छोटे बल्ब की लाइट बड़े बल्ब को भी मिलेगी. बट द ओवरऑल इफेक्ट हम देखें कि ट्रांसफर ऑफ लाइट, the overall effect would be from high intensity light to the low intensity light. Similarly is the case with the heat. दो बॉडी है जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो जो हाई टेम्परेचर बॉडी जो हीट एमिट करेगी और वो लो टेम्परेचर को मिलेगी, और लो टेम्परेचर वाली जो बॉडी हीट एमिट करेगी वो हाई टेम्परेचर को मिलेगी. बट क्योंकि हाई टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट एमिट करेगा एज कम्पेयर टू दी लो टेम्परेचर बॉडी. सो नेट इफेक्ट वुड बी द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू दी कोल्ड टेम्परेचर बॉडी. ओके, तो बेसिकली जब रेडिएशन की वजह से डिफरेंट बॉडीज हीट एमिट करती है तो वो हर डायरेक्शन में करती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं रूम की बात करूँ, रूम में अगर ट्यूबलाइट हीट एमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को ट्यूबलाइट की जो हीट एमिट हो रही है या रेडिएट हो रही है वो मिलने वाली है. फॉर एग्जांपल टू द फैन, टू द डोर, टू द विंडोज एंड टू द ह्यूमन्स ऑल्सो. ओके, सिमिलरली डिफरेंट मटेरियल जो रूम के अंदर है वो जो हीट रेडिएट कर रहे हैं वो भी ट्यूबलाइट को मिल रही है. तो इस तरह से हम एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी या एक सर्फेस को एज्यूम करें तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज से वेरियस अमाउंट ऑफ एनर्जीज आ रही हैं, एंड द एडिशन ऑफ ऑल दोज एनर्जीज और रेडिएशंस विच इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द सरफेस is called as incident radiation or irradiation, and it is denoted by G. Okay, so G is the basically the input energy to the surface due to radiation from the neighboring bodies or surfaces. Okay, अब जो एनर्जी कोई भी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो जिस तरह लाइट वेव्स बिहेव करते हैं ठीक उसी तरह रेडिएशन भी बिहेव करता है. तो जो भी रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी सरफेस पे फॉल हो रही है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी. उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा सरफेस, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसमिट करेगा, एज यू कैन सी इन द फिगर. ओके, सो बेसिकली इफ वी सी द एनर्जी बैलेंस देन टोटल रेडिएशन इनपुट इज इक्वल टू टोटल रेडिएशन आउटपुट. नाउ व्हाट इज द इनपुट हियर? इट इज इंसिडेंट रेडिएशन इज द इनपुट, and the outputs are absorbed radiation, reflected radiation and transmitted radiations, which can be denoted by GA, GR and GT respectively. Okay, so the energy balance equation will become G is equal to GA plus GR plus GT. Okay, now if I divide both sides by G in order to find something, then what I will get? I will get alpha plus rho plus tau is equal to 1. Now what is alpha? Alpha is a ratio of GA by G. Similarly rho is a ratio of GR by G, and
tau is a ratio of GT by G, and they are called as absorptivity, reflectivity and transmissivity respectively. Okay, so अब हमने ये देख लिया कि रेडिएशन में कौन कौन सी इनपुट एनर्जीज होती है, कौन कौन सी आउटपुट एनर्जीज होती है. तो अब हम कुछ इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं. Irradiation, which is also another name for incident radiation. Okay, so it is basically the total incident radiation on the surface from all the direction per unit time per unit area of the surface. Okay, as मैंने आपको पहले ही बताया, from all the direction means अगर हम रूम में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैं रूम के अंदर बैठा हूँ तो मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे बॉडी में कितना रेडिएशन से इनपुट आ रहा है, डेट इज इररेडिएशन. अब वो जो इनपुट एनर्जी मेरे को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो सिर्फ एक बॉडी एमिट नहीं कर रही है. रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, फैन, ट्यूबलाइट, डोर, विंडोज एक्सेट्रा, जिनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट नॉन जीरो नहीं है, तो उन सब से मेरे को हीट इनपुट मिलेगा फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. सो सम ऑफ ऑल इंसिडेंट रेडिएशन per unit time per unit area of my body, I can call it as irradiation. Okay, and it can be expressed in watt per meter square. Why watt? Because total incident radiation per unit time, joule per second is watt, and because of per unit surface the unit will be watt per meter square. Okay, now what is absorptivity? It is the ratio of total energy absorbed by the body or the surface to the total energy incident on it. Similarly, what is reflectivity? It is the ratio of total energy reflected by the surface to the total energy incident on the surface. And transmissivity is the total energy transmitted by the surface to the total energy incident on it. Okay, and they are represented by alpha, rho and tau respectively, and obviously alpha, rho and tau would be dimensionless because G, Ga, Gr and Gt all have same units, that is watt per meter square. Okay, तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एमिसिव पावर. तो अभी हम जैसे बात किए थे कि सभी बॉडीज जो कि नॉन जीरो टेम्परेचर में रहती हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट एमिट करती हैं. जो हॉट बॉडी रहती है वो ज़्यादा हीट एमिट करेगी, जो कोल्ड बॉडी रहेगी वो कंपेरेटिवली कम हीट एमिट करेगी. तो व्हाट इज एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी? ओके, ये बेसिकली एक आउटपुट है बॉडी का रेडिएशन के फॉर्म में. तो इररेडिएशन एक इनपुट है और एमिसिव पावर एक आउटपुट है बॉडी का. एंड दिस आउटपुट इज ड्यू टू द self temperature of the body. Okay, so it can be defined as total amount of radiation emitted by a body per unit area per unit time. And what is the definition of irradiation? Total radiation incident on the body from all the direction per unit area per unit time. Okay, so irradiation is basically an input and emissive power is basically an output, and similarly its unit is also watt per meter square. ठीक है, अब ब्लैक बॉडी के लिए, ग्रे बॉडी के लिए, डिफरेंट बॉडीज के लिए एमिसिव पावर कितनी होती है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे. नाउ द नोट द फर्स्ट पॉइंट, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया. एवरी बॉडी हैविंग नॉन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेडिएट्स हीट कंटिन्यूअसली. एंड सेकेंड पॉइंट इज द बॉडी विच एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ्स एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. अब रेडिएशन के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम डिफरेंट बॉडीज को, सरफेस को अलग अलग टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड एज पर द क्लासिफिकेशन, जो बॉडी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हीट एमिट करती है एट ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. ओके, तो ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है? वो दूसरे बॉडी के कंपेरिजन में एट द सेम टेम्परेचर एंड ऑल द वेवलेंथ्स इट एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन. उसका एमिसिव पावर मैक्सिमम होता है किसका? ब्लैक बॉडी का. अब ब्लैक बॉडी क्या होती है वो डिटेल में थोड़ी देर बाद हम आएंगे, उससे पहले मुझे कुछ और चीज़ डिस्कस करना है. तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में अब हम वापस से आते हैं कि सभी बॉडीज जिनका नॉन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली हीट रेडिएट करते हैं. ठीक है, हम उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक आइस क्यूब का, जो कि अभी अभी हमने फ्रिज से निकाले हैं और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हमने रख दी है. तो अब क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या ये बॉडी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है, डेट इज आइस क्यूब, क्या वो हीट एमिट करेगा? अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं. ओके, सो आई होप आपने सही आंसर सोच लिए होंगे. तो सिंस द टेम्परेचर ऑफ दिस आइस क्यूब इज 0 डिग्री सेल्सियस, डेट इज इन केल्विन इट इज 273 केल्विन. ओके, सो 273 केल्विन इज नॉन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो ऑब्वियसली दिस आइस विल रेडिएट्स हीट कंटिन्यूसली. ओके, ना सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर ये आइस कंटिन्यूसली हीट को एमिट कर रहा है या रेडिएट कर रहा है तो मतलब इसमें से हीट एनर्जी लॉस हो रही है.
रेडिएशन एमिट हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी इसमें से लॉस हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये है, जब इसमें से हीट एनर्जी लॉस हो रही है तो इस आइस का टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम होना चाहिए मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, यानी नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर जाना चाहिए। मतलब ये आइस मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे कम है टेम्परेचर तो आइस मेल्ट नहीं होगा। बट हम अगर ऐसा ऑब्जर्व करें कि आइस को हमने फ्रिज से निकाले जो कि और इनिशियली उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम रूम पर रख देते हैं तो आइस मेल्ट होने लगता है। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन? क्या इसका ये मतलब है कि इससे हीट एमिट नहीं हो रही है, रेडिएट नहीं हो रही है? नो। देन व्हाट इज द रीजन? इस बॉडी से जो कि आइस है उससे हीट कंटिन्यूसली रेडिएट या एमिट हो रही है, बट वो जितने रेट से इससे हीट एमिट नहीं हो रही उससे ज़्यादा रेट से रूम टेम्परेचर में जो अदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनसे उसको हीट मिल जा रही है। और साथ ही साथ रूम के अंदर जो एयर है वो भी मोशन में है और जो आइस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो देयर वुड बी अ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बिटवीन रूम एयर टू द आइस सरफेस। So that's why the energy input to the ice is the convection heat transfer from the air and radiation heat transfer from the various objects present in the room. So net energy input to the ice is much greater than net heat energy output from the ice. So overall effect is the increase in temperature of the ice, and that's why ice starts melting soon after we kept it at room temperature. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एमिसिविटी। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखे कि जो बॉडी सबसे ज़्यादा हीट एमिट करती है, यानी जो बॉडी जिसका एमिसिव पावर सबसे ज़्यादा है वो है ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी इज लाइक अ रेफरेंस फॉर अस, ठीक है, जिससे हम दूसरे टाइप की बॉडी का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, लाइक कार्नोट इंजन। एंड व्हाट इज द एमिसिविटी? इट इज द एबिलिटी to emit heat or radiate heat, okay, and it is defined as the ratio of emissive power of a body to the emissive power of a black body, okay, and it is noted by epsilon. And since the black body here is referenced, therefore for black body the emissivity would be equal to 1. जिस तरीके से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिफरेंस फ्लूइड लेते हैं वाटर को, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, ठीक उसी तरह एमिसिविटी में हमारा रेफरेंस सरफेस और बॉडी रहता है ब्लैक बॉडी, तो एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी वुड बी इक्वल टू 1. एंड फॉर नॉन ब्लैक बॉडीज द रेंज ऑफ एमिसिविटी वुड बी बिटवीन 0 to 1. It cannot be greater than 1 because I already told you black body radiates maximum amount of heat. So all non-black bodies would have less emissive power as compared to the emissive power of the black body. So this ratio of emissive power of the body to the emissive power of the black body would always be less than 1. That is, the emissivity of the body would always be less than 1. Okay. Now, what is the black body? So, as the body which neither transmits nor reflects but absorbs all the incident radiation is called as black body. तो हमने स्टार्टिंग में आज के वीडियो में फर्स्ट स्लाइड में ये चीज़ देखे थे कि जब डिफरेंट सोर्सेज से कोई सरफेस में इंसिडेंट रेडिएशन आते हैं तो उस इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। बट ऐसी बॉडी जो कि सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और उसमें से कुछ भी ना तो ट्रांसमिट करे ना ही रिफ्लेक्ट करे, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ओके, सो मैथमेटिकली for black body tau is equal to 0, that is transmissivity is equal to 0, rho is equal to 0, reflectivity is equal to 0, and alpha is equal to 1, that is absorbivity is equal to 1 and emissivity is also equal to 1. okay, क्योंकि absorbivity 1 क्यों रहेगी? क्योंकि जितना इंसिडेंट रेडिएशन है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसलिए absorbivity 1 because it is the ratio of radiation absorbed to the total incident radiation. And since here the radiation transmitted and radiation reflected is 0, therefore transmissivity and reflectivity for the black body would be 0. Okay, and just in the last slide we have seen that black body is taken as a reference for calculating the emissivity, that's why its emissivity would be 1. Okay, so since the value of the alpha and epsilon for the black body is 1, so it is also called as ideal absorber as well as ideal emitter.
ideal absorber because alpha is equal to 1 and ideal emitter because epsilon is equal to 1. So it is that type of body which absorbs maximum amount of heat as well as emits maximum amount of heat. Okay, so this is another property of the black body, that is it emits maximum amount of thermal radiations at all wavelengths at any specified temperature. Okay, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम ब्लैक बॉडी और नॉन ब्लैक बॉडी का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा हीट कौन एमिट करेगा? ब्लैक बॉडी. ओके, एंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इट इज डिफ्यूज्ड एमिटर, दैट इज द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. मीन्स जो ब्लैक बॉडी है वो सारे डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट में हीट को रेडिएट करेगा या एमिट करेगा. यहाँ पे एक फिगर से ये शो की है, ये जो ब्लैक बॉडी है जो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ना रिफ्लेक्ट डायरेक्टली नहीं किया, ट्रांसमिट एब्जॉर्ब कर लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया. अब जितना उसका पर्टिकुलर टाइम स्टैंड में टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो कंटिन्यूसली सर्टेन रेट से रेडिएशन एमिट करेगा. बट वो जो रेडिएशन सर्टेन रेट से एमिट कर रहा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी यूनिफॉर्म अलोंग ऑल द डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट द केस विद द रियल बॉडीज और नॉन ब्लैक बॉडीज. ओके, सो ब्लैक बॉडी को हम आइडियल बॉडी भी बोलते हैं. सो नॉन ब्लैक बॉडीज आर कॉल्ड एज रियल बॉडीज. ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी एक और क्या है कि सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली हीट को एमिट करता है. नाउ सिंस नो सरफेस इज अ प्रिसाइजली ब्लैक बॉडी. हाँ, तो अब जैसे कि हमने बोल दिया कि ब्लैक बॉडी एक आइडियल एमिटर है और आइडियल एब्सॉर्बर है. अब आपको पता ही है प्रैक्टिकली आइडियल जैसी चीज़ कुछ एग्जिस्ट नहीं करती. सो नो सरफेस इज प्रिसाइजली अ ब्लैक बॉडी, दैट इज कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो 100% हीट को एब्सॉर्ब ही कर ले. कुछ ना कुछ पार्ट में उसमें रेडिएशन या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो ट्रांसमिट ज़रूर होगा. ओके, सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम उसका क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन हम अचीव कर सकते हैं. एंड उसका एग्जांपल है कैविटी विथ यूनिफॉर्म इनर टेम्परेचर. ओके, सो कोई भी बॉडी जिसको हमको ब्लैक बॉडी बनाना है तो उसके लिए हमको एब्जॉर्बिविटी मैक्सिमम होना चाहिए. अब एब्जॉर्बिविटी मैक्सिमम कब मिलेगी? जब हम रिफ्लेक्टिविटी को जीरो कर दें या मिनिमाइज कर दें या ट्रांसमिसिविटी को मिनिमाइज कर दें. तो अब कोई भी एनर्जी जो बॉडी के ऊपर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस तरीके का एक शेप लिया बॉडी का. एक सर्कुलर क्लोज कैविटी है जिसमें स्मॉल होल है जिससे एक एनर्जी इंसिडेंट रहे. अब एनर्जी इंसिडेंट रहेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी. तो सपोज ये उसको हमने ब्लैक पेंट कर लिया जिससे मैक्सिमम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर ले बॉडी. अब जिसमें से 10% मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, 90% इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 10% रिफ्लेक्ट हो रहा है. बट जो एनर्जी यहाँ पे 10% रिफ्लेक्ट हो रही है वो वापस से इसी बॉडी को मिल रही है. अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 10% में से फिर 9% वो एब्जॉर्ब कर लेगा, 1% रिफ्लेक्ट होगी. अब जो 1% रिफ्लेक्ट हो रही है वो वापस से इधर आएगा और 1% में से 0.9% ये वापस से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और 0.1% रिफ्लेक्ट करेगी या ट्रांसमिट करेंगे. ओके, तो इस तरीके से हम अगर क्लोज चैम्बर एक क्लोज कैविटी बनाएंगे तो हमारे यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद भी बॉडी में जो एनर्जी आ रही है वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाएगी. ओके, और इससे पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद बॉडी डायरेक्टली बाहर निकले, मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑलरेडी एब्सॉर्ब्ड बाय द मटेरियल. एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी ट्रांसमिशन हम क्या करेंगे, इस सरफेस को यूनिफॉर्म टेम्परेचर में मेंटेन करेंगे. अगर हम सरफेस के इनर लेयर से आउटर लेयर को यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करें तो उसमें कंडक्शन की वजह से बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब बॉडी के अंदर के लेयर से बाहर के लेयर में हीट नहीं आएगी. ओके, सो यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने से हम ट्रांसमिटिविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, और क्लोज चैम्बर बनाने की वजह से हम रिफ्लेक्टिविटी के इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं. रिफ्लेक्टिविटी हो तो रही है बट उसके इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज द ब्लैक बॉडी एंड दिस सिस्टम हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन द कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस. ओके, अगर इस टाइप की कैविटी को हम वैक्यूम के अंदर रख लें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलिब्रेटिंग दी वेरियस टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस. इसको वैक्यूम में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें से कुछ भी कन्वेक्शन लॉसेस ना हो. ओके, और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें कि विद इन द विजुअल बैंड ऑफ द रेडिएशन एनी मटेरियल विच एब्सॉर्ब्स ऑल द विजिबल लाइट अपीयर्स एज ब्लैक. ओके, सो जैसे कि आपको पता है थर्मल रेडिएशन के वेवलेंथ का एक रेंज रहता है, दैट इज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. तो उसमें से थोड़ा पार्ट अल्ट्रावायलेट रेस का रहता है, पूरा पार्ट विजिबल रेस का रहता है और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इंफ्रारेड रेडिएशन का रहता है. ओके, अब
उसमें से अगर हम सिर्फ विजिबल वाले वेवलेंथ बैंड को ऑब्जर्व करें, सो ऐसी बॉडी जो विजुअल रेंज के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो हमको ब्लैक अपीयर होती है। ओके, विदिन द विजुअल बैंड ऑफ रेडिएशन एनी मटेरियल विच एब्जॉर्ब ऑल द विजिबल लाइट अपीयर्स एज ब्लैक। मतलब अगर ऐसी कोई बॉडी है जो कि विजिबल बैंड के बाहर यानी इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सारी के सारी एब्जॉर्ब करती है तो एज पर डेफिनेशन वो भी ब्लैक बॉडी हुई। बट क्योंकि हम इंफ्रारेड रेडिएशन को और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सो इससे क्या साबित होता है कि ऑल दी ब्लैक बॉडीज डज नॉट नेसेसरली अपीयर ब्लैक इन कलर फ्रॉम दी नेकेड आई, एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज स्नो एंड आइस। They are also can be approximated as black body. The reason why snow and ice can also be approximated as black body because they absorb all the radiation of the infrared band. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्योंकि थर्मल रेडिएशन का जो बैंड है उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इंफ्रारेड रेडिएशन का रहता है, और आइस और स्नो इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उसमें तो ज़रूरी नहीं है आइस और स्नो में से इंफ्रारेड रेडिएशन ही इनपुट रेडिएशन है, उसमें कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट भी रह सकता है, कुछ पार्ट विजिबल का भी रह सकता है। तो जो पार्ट विजिबल या अल्ट्रावायलेट का रहता है वो रिफ्लेक्ट कर लेती है या ट्रांसमिट कर लेती है, बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इंफ्रारेड होने की वजह से जो कि वो सारे के सारे ऑब्जॉर्व करती है उसकी एमिसिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन स्नो एंड आइस ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी because it absorbs maximum amount of infrared radiation incident to it. But since it is infrared radiation, it is not visible radiation, so it does not appear black in color, but still they behave like a black body. Now the second type of body is opaque body. So opaque body is basically a term used for the bodies which does not transmit any heat. So when the no incident radiation is transmitted by the body, it is called as an opaque body. So opaque body में जितनी भी energies इनपुट होती है थ्रू रेडिएशन वो या तो बॉडी एब्सॉर्ब करता है या तो रिफ्लेक्ट करता है, बट उसमें से कुछ भी एनर्जी वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। सो फॉर ओपेक बॉडी ट्रांसमिसिविटी वुड बी 0 एंड द सम ऑफ एब्सॉर्बिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी वुड बी इक्वल टू 1. सो द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस इज मेटल, वुड, ब्रिक एक्सेट्रा, बेसिकली ऑल द सॉलिड मटेरियल विच आर हैविंग सर्टेन थिकनेस। तो बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस के अगर मटेरियल है तो उसमें कुछ एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकती है, बट उसका अगर मटेरियल का सर्टेन थिकनेस है तो नॉर्मली वो एनर्जी को डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करता है। एंड ग्लास एंड वाटर आर प्रैक्टिकली ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, अब ग्लास एंड वाटर को हम इन अ विजिबल रेंज ऑब्जर्व करें तो लाइट जो है उससे ईजिली पास हो जाती है, हम सबको पता है, हम नेकेड आई से उसको देख भी सकते हैं। विजिबल लाइट वाटर और ग्लास के थ्रू ईजिली पास हो जाती है, बट लाइट की तरह सेम बिहेवियर कौन करता है? रेडिएशन। तो इसका मतलब है रेडिएशन भी विजिबल रेंज की जो रेडिएशन है वो भी ग्लास और वाटर से ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन जो रेडिएशन विजिबल बैंड की नहीं है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्लास और वाटर ट्रांसमिट नहीं करता। सो ग्लास एंड वाटर आर प्रैक्टिकली ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Planck's distribution. So Planck's distribution or Planck's law gives the spectral distribution of radiation intensity of the black body. Now what do you mean by spectral distribution? तो जैसे कि हमने बात की है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो मैक्सिमम अमाउंट में हीट को एमिट करती है एट ऑल द वेवलेंथ्स एंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो अब अगर हम स्पेसिफाइड कोई टेम्परेचर की बात करें, सपोज 1000 केल्विन, तो ब्लैक बॉडी क्या सारे वेवलेंथ पे सेम अमाउंट में हीट एमिट करेगा? तो आंसर इज नो। Black body in total, emissive power of the black body in total is the total amount of energy emitted by the black body. Suppose the emissive power of any body is 1000 watt per meter square. अब ये जो 1000 watt per meter square emissive power है, it is the sum total of all the wavelengths. मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक जो थर्मल रेडिएशन का वेवलेंथ बैंड रहता है, उन सारे वेवलेंथ बैंड के सम अगर हम करेंगे तो हमको टोटल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी मिलेगा। ब्लैक बॉडी जो कंटिन्यूसली हीट को एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेम वेवलेंथ नहीं रहता। द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। और जो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर एमिसिव पावर मिल रहा है हमको ब्लैक बॉडी का, तो वो यूनिफॉर्म नहीं मिलता एक्चुअली। हमको अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग अमाउंट में
ब्लैक बॉडी हीट को एमिट करता है। तो कितने वेवलेंथ पे कितनी हीट ब्लैक बॉडी एमिट करेगा, दैट relation is described by Planck's distribution, and according to that Planck distribution, spectral emissive power or monochromatic emissive power of the black body can be described by this relation. Okay, now in this equation lambda is the wavelength and T is the absolute temperature. Okay, now what is C1 and C2? C1 and C2 are basically two constants whose value depends upon some other constants, that is speed of light, Planck's constant and Boltzmann constant. Okay, and their value if we calculate, then it will come around 3.742 into 10 raised to the power 8 watt micrometer to the power 4 by meter square. अब इस तरीके से क्यों यूनिट आई है इसकी, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं जो ग्राफ हम बनाते हैं नॉर्मली, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं, वो ग्राफ्स में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो माइक्रोमीटर के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस में वेवलेंथ माइक्रोमीटर में, तो कुछ लोगों ने कांस्टेंट को उस इक्वेशन में डिस्क्राइब किया है। बट अगर हम एक इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसको बेटर ये रहता है कि हम एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम एसआई यूनिट में इस कांस्टेंट को फाइंड करें तो माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to the power -6 एंड हेयर माइक्रोमीटर टू द पावर 4, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10 raised to the power -24, so we will get 3.742 into 10 raised to the power -16 watt meter square. ओके, बिकॉज यहाँ पे जब माइक्रोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर टू द पावर 4 और मीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी हम अगर माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे 10 raised to the power -6 आने की वजह से C2 की वैल्यू इन एसआई यूनिट मिल जाएगी 0.14388 मीटर केल्विन। ओके, सो इसी इक्वेशन को, जो प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ बुक्स में वाई स्केल में, लॉगरिथमिक स्केल है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लीनियर स्केल है। अब और कुछ बुक्स में जो वेवलेंथ का रेंज है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक पूरी तरह से दिया हुआ है। ओके, बट हम अभी फिलहाल कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं इससे, इसलिए मैंने अभी सिर्फ ऐसा ही डायग्राम दिया हूँ जिसमें थोड़ा सा पार्ट उस डिस्ट्रीब्यूशन का जूम करके, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 1000 केल्विन, 1500, 2000, और हमने एक स्मॉल रेंज ली है यहाँ पे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग। So this figure shows basically the variation of emissive power of black body with the wavelength, and instead of considering the complete thermal radiation wavelength from 0.1 micrometer to 100 micrometer, I have taken wavelength band from 0 micrometer to 4 micrometer only. Okay, so ये जो डायग्राम है वो एक्चुअली इसी प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो हम इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम फाइंड करेंगे एमिसिव पावर, तो जो वैल्यू उस ग्राफ से मिलेगी वही वैल्यू हमको इस इक्वेशन से मिलेगी। ओके, सो हमने प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसलिए देखे ताकि हम रियल बॉडीज को डिफाइन कर सके और उससे हम ग्रे बॉडी को डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है बिटवीन आइडियल बॉडीज एंड द रियल बॉडीज इस डायग्राम में। तो आप अगर देख सकते हो जो इसमें फर्स्ट कर्व है, जो स्मूथ कर्व सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, डेट इज फॉर ब्लैक बॉडीज, एंड यहाँ पे हमने जो कर्व ली है डेट इज स्पेसिफिकली फॉर 3000 Fahrenheit टेम्परेचर। ओके, नाउ फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्वाइट क्लियर दैट एमिसिव पावर ऑफ दिस ब्लैक बॉडी एट 3000 Fahrenheit इज हायर एज कंपेयर टू द रियल सरफेस, because the black body is having the maximum emissive power, it emits maximum amount of heat, but this is not the case with the real bodies. All the real bodies emits heat less than the black bodies. अब अगर हम ब्लैक बॉडीज की जगह रियल बॉडीज का भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन देखें एट डिफरेंट वेवलेंथ, तो क्या ऑब्जर्व हुआ है कि इनका बिहेवियर बहुत अनइवन है, कि इनका रियल बॉडीज का एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो कर्व जो भी मिलेगा बहुत जिगजैग फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हम रियल बॉडीज का हीट ट्रांसफर एनालिसिस करेंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है इसका सर्टेन रिजल्ट्स में आने के लिए, ड्यू टू अनइवन नेचर ऑफ द ग्राफ। बिकॉज अगर हम अलग अलग पॉइंट में अलग अलग वेवलेंथ में अगर हम इस रियल सरफेस की एमिसिविटी कैलकुलेट करें, नाउ व्हाट इज एमिसिविटी? एमिसिव पावर ऑफ द रियल सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट में हर एक डिफरेंट वेवलेंथ पे रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द रियल सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डिफरेंट। जहाँ जहाँ पे ब्लैक बॉडी और रियल सरफेस के ग्राफ में ज़्यादा गैप है वहाँ पे एमिसिविटी कम रहेगी, और जहाँ जहाँ पर कम गैप है वहाँ पे एमिसिविटी ज़्यादा हो सकती है। सो इसकी वजह से हमारे कैलकुलेशन में और रियल सरफेसेस के हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको
सारे जो zigzag फॉर्म में जो डिफरेंट वेवलेंथ में जो हमको मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर मिल रहा है रियल सरफेस का, उसको हम इंटीग्रेट करके मीन वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि मीन वैल्यू जो हमको मिली है वो डिफरेंट वेवलेंथ पे कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को ट्रीट करके हम रियल सरफेस को कंसीडर करते हैं एज अ ग्रे बॉडी और उसका एनालिसिस करते हैं एज अ ग्रे बॉडी। ओके, सो दीज पॉइंट्स आर मेंशन हियर। रियल सरफेस की एमिसिविटी अलग अलग वेवलेंथ पे, लैम्डा 1 पे, लैम्डा 2 पे, लैम्डा 3 पे अलग अलग रहेगी। इसकी वजह से हीट फ्लो एस्टिमेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इस वजह से हम रियल सरफेस को एज अ ग्रे सरफेस एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमको जो कर्व मिले वो भी स्मूथ मिल सके। अब स्मूथ कर्व मिलने के बाद भी ब्लैक सरफेस के नीचे रहेगा, बिकॉज ग्रे बॉडी जो अगर रहेगी तो उसकी सर्टेन एमिसिविटी रहेगी और वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव टेकन 0.6। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वेवलेंथ में हम इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो 60% आएगा हर एक वेवलेंथ पे। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रे सरफेस का भी एक स्मूथ कर्व हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड फॉर एनालिसिस पर्पसेस surfaces are usually considered as gray bodies with emissivity taken as integrated average value. Okay, now what is gray body? So gray surface is a medium whose monochromatic emissivity does not vary with the wavelength. And now what is monochromatic emissivity? It is the emissive power of the body at particular wavelength. एक particular wavelength पे कितना बॉडी हीट एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी? मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी इज द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम वेवलेंथ। ओके, सो ग्रे सरफेस या ग्रे बॉडी वो एक ऐसी बॉडी है जिसकी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर वेवलेंथ के साथ चेंज नहीं होता, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। सो ऑल रियल बॉडीज आर बेसिकली वी कैन एज्यूम एज ग्रे बॉडीज। ओके, इसके अलावा ग्रे बॉडी की क्या प्रॉपर्टी है कि एमिसिविटी तो हम कांस्टेंट एज्यूम करते ही हैं, उसके अलावा एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी फॉर द इंटायर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम हम कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। Okay, and for gray bodies obviously it is not ideal emitter, so emissivity for the gray body would be less than 1 and it is defined as emissive power of the gray body to the emissive power of the black body, which we have already discussed. Okay, so in some cases where the reflectivity and transmissivity are very negligible, so dead bodies can be assumed as of black bodies. Okay, normally very large bodies are having very large area can be as approximated as black body, and all the real bodies can be approximated as gray bodies. Okay, now the very important law of radiation, that is Stefan-Boltzmann law, which is also the basic or the fundamental law of radiation. So what is this Stefan-Boltzmann law? So अभी तक हम एमिसिव पावर की बहुत बात कर रहे थे कि एमिसिव पावर किसको बोलते हैं, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ऑल द वेवलेंथ, डेट इज एमिसिव पावर। उसमें से भी हमने ये देखा कि ब्लैक बॉडी अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को एमिट करता है पर यूनिट एरिया, पर वो ब्लैक बॉडी टोटल कितनी एनर्जी एमिट करता है, दैट वैल्यू ऑफ दैट टोटल एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ and it states that the emissive power of the black body is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. So mathematically emissive power of the black body is directly proportional to temperature to the power 4, and if I want to remove the sign of proportionality then I have to introduce one constant, that is sigma, which is called as Stefan-Boltzmann constant, and its value is 5.67 into 10 raised to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4. तो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें कांस्टेंट नंबर 31 में आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो दिस लॉ इज बेसिकली डिफाइंड for the black body, that is emissive power of the black body is directly proportional to temperature to the power 4. Now if I want to calculate the total emissive power of the gray body, then I have to use the definition of emissivity, that is the ratio of emissive power of the gray body to the emissive power of the black body. So ये दोनों रिलेशन यूज करके हम emissive power that is total emissive power of the gray bodies at all the wavelength and total emissive power of the black bodies at all the wavelength हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now using the Stefan-Boltzmann law, we have to see the radiation heat exchange between two black bodies. Okay, so for that I have considered two bodies which are at different temperature T1 and T2. Okay, now I am considering these two bodies as black bodies. So the
as per the Stefan Boltzmann law, the emissive power of the first body would be equal to sigma T1 to the power 4, where T1 is the absolute temperature of the body 1, that is temperature of the body 1 in Kelvin. Okay, so the rate of heat emitted by the body would be Q1 is equal to A1 sigma T1 to the power 4. अब यहाँ पे A1 कहाँ से आया? A1 is the area or the surface area of the body, because emissive power is the total amount of energy emitted by the body per unit area per unit time. बट अगर हम अभी भी पर यूनिट टाइम ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बट हम पर यूनिट एरिया नहीं, टोटल एनर्जी देखना चाह रहे हैं कि वो बॉडी कितनी रेडिएट कर रही है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एमिसिव पावर को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज Q1 इज इक्वल टू A1 इंटू E1, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वी विल गेट Q1 is equal to A1 sigma T1 to the power 4, and this is the rate of heat radiated by the body 1. Okay. Similarly, for the body 2, which is also a black body, we can calculate rate of heat radiated by body 2, that is Q2 is equal to A2 sigma T2 to the power 4. Okay. Now we have to study the radiation heat exchange between two bodies. Okay. What do you mean by radiation heat exchange? मतलब दो बॉडी जो कि डिफरेंट टेम्परेचर में है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम है. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया लेक्चर में कि जो कम इंटेंसिटी का बल्ब है उसकी लाइट भी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले बल्ब को मिलेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी वाले बल्ब की लाइट भी कम इंटेंसिटी वाले बल्ब को मिलेगी. बट द नेट इफेक्ट वुड बी द ट्रांसफर ऑफ लाइट फ्रॉम हाई इंटेंसिटी बल्ब टू द लो इंटेंसिटी बल्ब. ओके. सिमिलरली इन दिस केस जो लो टेम्परेचर बॉडी हीट को रेडिएट कर रहा है वो हाई टेम्परेचर बॉडी को मिलेगी, और हाई टेम्परेचर बॉडी जो हीट रेडिएट कर रहा है वो लो टेम्परेचर बॉडी को मिलेगी. बट द नेट इफेक्ट वुड बी द ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन एनर्जी, और द नेट इफेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंज वुड बी फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू द लो टेम्परेचर बॉडी. ओके. Therefore, if the T1 is greater than T2, then rate of heat transfer due to radiation would be Q12 is equal to Q1 dash minus Q2 dash. Now what is this Q1 dash and Q2 dash? यहाँ पे हमने कंसीडर किया Q1 Q2, और यहाँ पे पर कंसीडर कर रहे हैं Q1 dash minus Q2 dash. तो उसके लिए वापस से वही रूम के हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं. रूम के अंदर दो इक्विपमेंट है, एक 100 वाट का बल्ब है और दूसरा है छोटा बल्ब है जो कि 10 वाट का है. ओके. अब इन दोनों के बीच में कितने अमाउंट में रेडिएशन हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अब जो बड़ा बल्ब है जो कि 100 वाट का है वो जो ज़्यादा अमाउंट में हीट को एमिट कर रहा है एज कम्पेयर टू द बल्ब विच इज़ एट लोअर टेम्परेचर. बट जो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला बल्ब या ज़्यादा वेटेज वाला बल्ब जो हीट रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, वो सारी की सारी हीट छोटे बल्ब को नहीं मिल रही है डायरेक्टली. उसमें से कुछ पार्ट ऑफ हीट फैन को मिल रही है, कुछ पार्ट ऑफ हीट विंडोज़ को मिल रही है, कुछ पार्ट ऑफ हीट डोर्स को मिल रही है. सो एक्चुअली फ्रॉम Q1 द बॉडी 2 इज रिसीविंग ओनली द Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट. सिमिलरली जो बॉडी 2 हीट रेडिएट कर रहा है वो सारी की सारी एनर्जी बॉडी 1 को नहीं मिल रही है, दूसरे बॉडीज को भी उसकी हीट मिल रही है, बिकॉज ब्लैक बॉडीज आर डिफ्यूज्ड रेडिएशन. द प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी की वो डिफ्यूज रेडिएशन होते हैं, वो सारे डायरेक्शन में हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एमिट करते हैं. तो सारी की सारी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में और दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में नहीं जा रही है. सो देन हाउ वी कैन डिफाइन Q1 डैश एंड Q2 डैश? Q1 dash is nothing but F12 into Q1, and Q2 dash is nothing but F21 into Q2, where F is nothing but shape factor. Okay. So in this way rate of heat transfer would be F12 sigma A1 T1 to the power 4 minus F21 sigma A2 T2 to the power 4. Okay. What is shape factor here? So shape factor is basically Q1 dash by Q1 and Q2 dash by Q2. So mathematically if I want to define the shape factor, then it is the fraction of energy which is emitted by the body 1 and which is directly received by the body 2 without any reflection. मतलब अगर बड़ा बल्ब जो है वो 100 वाट हीट को एमिट कर रहा है और उसमें से डायरेक्टली 50 वाट ही छोटे बल्ब को मिल रही है, तो shape factor of the larger bulb with respect to the smaller bulb would be 0.5, that is 50%. Similarly F21 would be equal to Q2 dash by the Q2. जो छोटा बल्ब है वो Q2 अमाउंट में हीट रेडिएट कर रहा है, पर उसमें से Q2 डैश अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली बड़े बल्ब को मिल रही है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो हीट एमिट हो रही है पहले फैन को गई और वापस रिफ्लेक्ट होकर दूसरे बल्ब में है. जो फ्रैक्शन ऑफ वो एनर्जी जो डायरेक्टली उस दूसरे बल्ब को मिल रही है, तो रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटी टू द टोटल एनर्जी emitted by the body is called as shape factor. And there is a theorem in the radiation chapter, that is chapter number 5, that is reciprocity theorem. By that we can
derived that A1 F12 is equal to A2 F21. So this thing we will see later on in the 5th module, but for the time being I am using this theorem for calculating the final equation for the heat transfer exchange between the black bodies. So rate of heat transfer would be sigma A1 F12 T1 to the power 4 minus T2 to the power 4. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पिछले इक्वेशन में हम A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21 पुट कर लें तो ये तीनों टर्म्स इस इक्वेशन में से कॉमन आ जाएंगे और ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4. So in this way we can calculate the heat exchange between two black bodies. Okay. Similarly, the radiation heat transfer from gray surface to the surrounding atmosphere can be found out by the Biot relation, where is Q12 is equal to sigma A1 F12 epsilon 1 T1 to the power 4 minus T2 to the power 4, or sigma A1 FR T1 to the power 4 minus T2 to the power 4, where epsilon 1 is the emissivity of the gray surface and T1 and T2 are the absolute temperature of the gray surface and the surrounding atmosphere respectively. Now instead of writing two different terms, F12 that is shape factor and epsilon 1 emissivity, I can also write simply FR, that is radiation factor. So radiation factor is nothing but a product of shape factor into emissivity. So basically कोई भी एक बॉडी है उससे अगर रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर, और ये बॉडी प्रैक्टिकल बॉडी है दैट इज ग्रे बॉडी है और उसकी एमिसिविटी हमको पता है, तो हम बाय यूजिंग दिस रिलेशन Q12 is equal to sigma A1 F12 epsilon 1 T1 to the power 4 minus T2 to the power 4, हम कितना रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दैट ग्रे सरफेस टू एटमॉस्फेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो आज के वीडियो डिस्कस करने के बाद हम यूनिवर्सिटी के इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. फर्स्ट वन, डिफाइन एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी एंड रेडिएशन. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नॉर्मली इनकी डेफिनेशंस लिखना होगा, और चाहे तो आप इसमें वैल्यू भी लिख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है, ग्रे बॉडी के लिए कितनी होती है, और ओपेक बॉडी के लिए इनकी वैल्यूज कितनी होती है. देन सेकंड क्वेश्चन वुड बी डिफाइन ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी एंड ओपेक बॉडी, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी एंड ओपेक बॉडी, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक बॉडी. So significance of black body in heat transfer is very similar to the significance of Carnot engine in thermodynamics. Okay. So Carnot engine practically बनाना possible नहीं है, but हम Carnot engine के performance को benchmark रख के दूसरे engine के performance को उससे compare करते हैं. Similarly, black body is ideal emitter और ideal absorber. So हम दूसरे type के bodies that is real bodies के performance को compare करने के लिए black body को as a benchmark treat करते हैं और as a reference treat करते हैं. Okay, now the third question would be the state Stefan-Boltzmann law of radiation. So in this you have to write the statement of Stefan-Boltzmann law और mathematical equation उसका लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है. ग्रे बॉडी के लिए और ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर कितना होगा ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. If you have no doubts, then please like the video and share it with your friends. And for getting more updates about the latest video in this channel, please subscribe to Hi It's Me. Thank you.